So we'll just start with work in progress. So I believe me being 22-year-old, a 22-year-old right now, I have a lot to learn. I know that the graffiti culture in Pakistan and doing street art in Pakistan is not that developed. So calling myself the best graffiti artist of Pakistan, I think that doesn't mean shit. Because being the best where no one is doing anything, that doesn't matter. So I'll tell you the story of this picture. This picture was basically, I think, in 2015 or something, where I vandalized my school and I jumped inside with my friends. I did a graffiti piece. I wrote my name, and then मुझे बाद में realize हुआ कि मैंने अपना नाम ही लिख दिया, and that's really obvious for people to know what I did. So it was vandalism with stupidity. So later on, I went there the next day. I scribbled it out, and this was basically my first graffiti piece. So I started off doing graffiti with a simple pencil and paper. I didn't have the tools. I didn't have anyone to film me. I didn't have the access to go outside and do a graffiti piece. We don't have legal walls in Karachi. So the goal was to just create something with the tools you have. So I had paper, pencils, markers. I started creating random little graffitis and then posting them on Instagram. So that's how it all started. So this is like another one of them. These are like really, really, really bad pieces. That was just a work in progress. So the goal is to just keep on working. So जब अरीब ग्रेजुएट होके कराची आया, तो he started doing his own thing. Then me watching him all the time doing his stuff, I was like, I have to pursue graffiti. So what we did was, हमारी कहानी क्या होती थी कि जब कोविड आया या कोविड से भी पहले अरीब और मैं निकलते थे एक बैग फिल करके, उसके अंदर स्प्रे कैंस होते थे. मैं बाइक चलाता था उस टाइम CD70. तो हम लोग CD70 पे निकलते थे, रैंडम कोई दीवार ढूंढते थे कराची में. मैं उसको पेंट करता था, अरीब उसको शूट करता था, सही है, शाम को एडिट, रात को पोस्ट. दैट वाज आवर स्केड्यूल. I had zero money. I had done like zero commission projects, but it was just to learn and to experiment and to show the world that we're still doing something. So this was the number one graffiti piece, the first graffiti piece. If you look, it's my really bad tag on the right, and Areeb का tag भी also. He wrote it by himself, I think. तो ये बहुत ही गंदा graffiti piece हमने कोई कराची की दीवार पे जिसके ऊपर पतंग का MQM का निशान बना हुआ है, सही है. तो that is the beauty of doing graffiti. तो अगर आप graffiti कर रहे हो कराची में, सही है, you're actually giving your work to the city, सही है. So the interesting part is कि मैं दो किस्म के काम करता हूँ. I do commission projects where I get money out of it, and that is me giving my work to my client. They own it. They have the rights to it. दूसरा काम ये होता है giving your work to the city, सही है, which you get no money out of, सही है. You get problems, सही है, but you get some people to like watch it, सही है. लेकिन एक बात जो बड़ी मज़े की वो है privilege, सही है. अब आप सब जो इधर बैठे हो, you guys are privileged enough to have internet access, to be on Instagram, to be on social media. You looked at our pages, you've been following any one of us, सही है, आपको पता है आप इधर आ गए, सही है. What about the people who don't have all of that, सही है, जो बस सड़क पे घूम रहे हैं, they're going about their own lives, सही है, उनको कहाँ कुछ देखने को मिलता है. Do they know about design? Do they know about art? Probably the thing they know about is truck art. सही है, that is beautiful also. But how can we increase the number of people in our community if we don't give them access to it? The way to give access is public art. तो basically जिस तरीके से हमने शुरू किया, it was basically कि हम बस बकचोदियाँ करते थे कराची में, सही है. That is how I am, honestly. मतलब that is how I speak. That is what we were doing, सही है. तो बकचोदियाँ करते सही है. I made random graffiti pieces. हम लोग वीडियोस बनाते थे, डालते थे. मैंने अरीब भाई से सीखा इलस्ट्रेटर. I made a digital graffiti piece. अपने मीडियम्स बढ़ाते गया मैं विद टाइम.
उसके बाद I was doing random different posts on Instagram. This was letter exploration or something. तो doing all of that, फिर at the same time, so we are three brothers. So yeah. So the beautiful thing is that we have a team of three always, no matter what, without any expenses, zero salary, nothing. सही है? It's like free labor every day. तो हम लोग काम करते हैं. अब मैं जो आधे projects पे काम करता हूँ, सही है? I have Areeb to help me out. He's my biggest. We basically just critique ourselves. सही है? मैं अरीब भाई को काम भेजूंगा, वो बताएंगे नो कि it looks shit, change this. सही है? मैं बोलूँगा okay. वो अपना काम मुझे भेजते हैं, सही है? But we are all in different avenues. अगर मैं कहीं और हूँ, सही है? If I'm not able to do something, I have Farzan backing me. Farzan basically runs the Ajeeb Collective. He's giving a talk tomorrow on projection mapping. So it's all three of us, the perfect team, and I think that is also the reason that we could like execute this whole project. तो जब अरीब भाई ने start किया था अजीब collective, तो we were like यार we have to include graffiti in this. So we got Fatma Shah, who's another artist from NCA, and me. So we went to an abandoned place और हमने वहाँ graffiti piece किया, we shot, we wore. This was the first time. Sorry. अच्छा, this was the first time कि हमने वो denims launch की थी. So we were shooting a whole ad for that. उसके बाद this was me like just randomly modeling for the shirts that we launched. उसके बाद let's come down to commission projects. तो commission projects, making money, doing something for yourself, that is really tricky. So the way I got into all of that is that you have to show people what you can do first. That is the first step. कि अगर चाहे मेरा जो भी skill level है, सही है? And there are clients for all levels of payments. सही है? आप start करते हो from the bottom down. सही? That's where I also started. सही है? 2,000, 3,000 रुपये, 4,000 रुपये, 5,000 रुपये. That is how it started. सही है? And in the beginning, it's easier to do that क्योंकि आपका standard of living भी ना वही होता है. आप 5,000 रुपये में ही खुश होते हो. सही है? Then that just makes you make more work. The best advice I can give to like making like getting more projects, getting more work, earning more money even, सही है? जो भी आप काम कर रहे हो ना, सही है? It's your work being distributed. सही है? मेरे काम का ये फ़ायदा था कि it was being immensely distributed क्योंकि वो एक शहर का एक हिस्सा बन गया था. तो उसको सिर्फ मेरी ऑडियंस नहीं देखती थी इंस्टाग्राम पे, वो शहर के सब लोग देखते थे. तो मेरे सारे काम के साथ मेरा टैग होता था, ये जो नीचे मेरा टैग है, दैट्स माय ग्राफिटी टैग, वो होता था, और मेरा इंस्टाग्राम होता था. तो बहुत सारे लोग मुझे ऐसे भी ढूंढते थे कि वो जा रहे हैं, उन्हें सिम्पसन कोका कोला वाली ग्राफिटी देखी, दे टैग मी ऑन इंस्टाग्राम, और फिर वो आ गए. तो जब आप काम डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो try to put out the best work that you can. सही है? You're earning 5,000 for a project. सही है? Let's say 5,000. सही है? You're starting out. It's your first project. सही है? काम आप करो 10,000 रुपये का. सही है? Just to start off. सही है? जब कोई और देखेगा, सही है? He'll realize कि that's a 10,000 rupees worth of work. सही है? Then you increase your level over and over and over again. सही है? तो जो सबसे बड़ी बात है वो कि आपका काम बोलता है. सही है? No matter how much words you know, no matter how much presentable you are, no matter whatever your thing is, of course a lot of things matter, privilege matters and all of that. आखिरी में आपका काम बोलता है. तो this was a really interesting project. This was my first multinational project with Coca-Cola, of course. तो उनके साथ अब पता नहीं मैं काम करता नहीं करता, लेकिन खैर उस टाइम पे सबका इजी सीन था, मतलब सब कमा रहे थे उनसे. तो आई डिड माई फर्स्ट प्रोजेक्ट. सही है? इट वाज अ कोका कोला, कोक ज़ीरो का नया लॉन्च था. सही है? तो जब मैं एक शहर में एक काम बना रहा हूँ, सही है, आई एम ट्राइंग टू मेक वर्क दैट अ लॉट ऑफ पीपल रेजोनेट विद, बट ऑल्सो
कि इट्स फन टू लुक एट, सही है. आई ट्राई टू मेक माई वर्क लुक फन, हैव सम सैटायर टू इट, सही है, कि यू स्टॉप एंड यू वॉच. क्योंकि कराची की दीवारों की ना एक बड़ी खूबसूरत बात यह है कि देर आर मैनी 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 लेयर्स टू द वर्क, सही है. अगर मैं काम करता हूँ, इसके बाद जब मैंने ये काम किया था, इसके बाद बताऊँ कौन था, इसके ऊपर शेख रशीद का पोस्टर था, सही है. फिर उसके बाद उतर के, क्योंकि बिलावल हाउस के पास है, तो इसके बाद फिर मरियम नवाज़ या पता नहीं किस, मरियम नवाज़ नहीं, बिलावल भुट्टो का पोस्टर लग गया, सही है. तो मेरे काम के ऊपर जब लेयर्स आती है तो आई डोंट माइंड दैट. वाई? बिकॉज इट्स नॉट माई प्रॉपर्टी नाउ, इट्स पब्लिक प्रॉपर्टी, इट्स वर्क फॉर द पब्लिक. तो मुझे ऑलमोस्ट अराउंड 5.5 years हो गए हैं वर्किंग एज ए ग्राफिटी आर्टिस्ट. सो इवेंचुअली व्हेन यू मेक गुड वर्क, व्हेन यू enjoy yourself, जब आपको काम में बकचोदी आती है, सही है, that is I think the perfect word for all of this, सही है, कि if you're not actually invested in something, सही है, आप सुबह 6 बजे उठ के बैग उठा के सोए बगैर नहीं निकल जाते, सही है. so you have to see if you can do that, know कि that is something that you can grow with, सही है. if you can't do that, सही है, and if you're like यार नहीं, इससे बेहतर मैं सो जाता हूँ हर दिन, तो देन आई थिंक डू समथिंग एल्स. बट फाइंड योर बकचोदी इन वट एवर यूर डूइंग, सही है. आपको एक थोड़ा अगर दीवानापन नहीं होता, आपको एक थोड़ा जुनून नहीं होता कोई काम का, सही है, ऑब्सेशन नहीं होता, देन आई थिंक यू विल बी मीडियोकर. तो अभी भी आई थिंक आई एम अ बिट मीडियोकर, या आई एम नॉट द बेस्ट, बट ट्राइंग टू डू गुड वर्क विद एवरी प्रोजेक्ट दैट ऑलवेज पेज ऑफ. अच्छा, तो उसके बाद कोलैबोरेशंस. तो कोलैबोरेटिंग इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल थिंग, सही है. आई डोंट गेट टू कोलैबोरेट विद अ लॉट ऑफ पीपल, बट व्हाट आई ट्राई टू डू इज़ कोलैबोरेट विद अरीब और फरजान ऑल द टाइम. सो आई गॉट माई फर्स्ट गैलरी शो. सो अ वाइट वॉश्ड गैलरी शो इज़ बेसिकली एक सफ़ेद डब्बा है, सही है. उसके अंदर एवरीबडी इज़ पुटिंग अप देयर फ्रेम्स, पुटिंग अप different artworks, sculptures, सही है. and it was my first gallery show. मतलब मेरा like being, मैं actually IVS में फाइन आर्ट्स पढ़ता हूँ, अभी मैंने गैप ईयर लिया हुआ है, मेरी बस हो गई थी पढ़ाई से, सही है. and that is also very good to take a break for yourself, सही है. तो खैर, तो I am actually a fine art sculpture artist, सही है. तो खैर, तो I got my first gallery show when I was in my second year. I was 20 or 21 at the time, सही है. It was a huge deal for me, सही है. तो मैंने बोला कि यार आई डोंट वांट टू डू दिस अलोन, लेट्स ब्रिंग अरीब इन, सही है. तो हमने क्या किया कि एक सफ़ेद वाइट वॉश्ड बॉक्स में, विच इज़ एक्चुअली अ वेरी मेस्ड अप कॉन्सेप्ट फॉर लाइक आर्ट के, और कौन जाता है, क्लिफ्टन में एक गैलरी है, सही है, हम में से भी चंद लोग जाते होंगे, सही है, उसके अलावा कोई नहीं जाता. तो हमने क्या किया कि मी बीइंग अ ग्राफिटी आर्टिस्ट, कि मेरा सारा काम शहर में होता है, इट्स फॉर द पब्लिक, इट्स इंटरेक्टिंग विद द सिटी, सही है. अगर मैं उसको एक सफ़ेद डब्बे में डाल रहा हूँ, सही है, उसके ऊपर प्राइस टैग लगा दूँ, सही है, एम आई जस्ट सेलिंग माई सेल्फ कि अब मुझे एक मौका मिला है बेचने का, तो फिर मैं बेच दूँ? नो. सो व्हाट आई ट्राई टू डू कि हमने उस गैलरी में एक 4-5 मज़दूर बुलाए, सही है, हमने एक एक्चुअल दीवार खड़ी की, सही है. इट वाज अ परमानेंटली लाइक फिक्स्ड दीवार जो हमने खड़ी की थी, और उसके द शो वॉज फॉर 21 days आई थिंक, सही है. तो 21 days के लिए वो एक टाइम स्पेसिफिक इंस्टॉलेशन थी, सही है. और पूरे शो में वी हैड अमेजिंग आर्टिस्ट, सही है, फ्रॉम ऑल ओवर पाकिस्तान, पेंटिंग, स्कल्पचर्स एंड एवरीथिंग, सही है. और जब आप एक गैलरी शो आते हो, आपको एक प्राइस लिस्ट मिलती है, उसके अंदर नाम, काम और मीडियम एंड प्राइस होता है, सही है. सिर्फ मेरे काम में आई स्पेसिफिकली टोल्ड देम कि इट्स नॉट फॉर सेल, इट्स अ टाइम स्पेसिफिक इंस्टॉलेशन जो एक टाइम के लिए लगेगी, फिर उतर जाएगी, सही है. आई इन्वेस्टेड लाइक अराउंड 60 or 70,000 रुपीज़ आई थिंक, मे बी समथिंग, सही है, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, इस काम में, जस्ट टू पुट इट अप, सही है. कि इवन इन्वेस्टिंग इन योर सेल्फ स्मार्टली पेज ऑफ, सही है. जब सब लोग बेच रहे हैं अपने आप को, सही है, उसके अंदर आप नहीं बेच रहे अपने आप को, सो दैट मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम एवरीवन, सही है. तो इसके अंदर द शो वाज अबाउट पॉप कल्चर, पॉप आर्ट, सही है. तो एक चीज़ जो बचपन से मैंने सुनी थी वाज द टेलीफोन एड, वो 0900786001. अच्छा, तो वो जो एड था, हमने उसको एक कि व्हाट इफ़ आई टेक दैट एड एंड देन व्हाट इफ़ इट वाज पेंटेड एज अ वॉल चॉकिंग ग्राफिटी
इन द सिटी ऑफ कराची. हमने पूरी एक दीवार खड़ी की उधर, सही है. मैंने उसके ऊपर ग्राफिटी की. देन आई हैड अरीब डिज़ाइन दिस चीप एज पोस्टर्स, सही है. जो आपको पोस्टर्स दिखते हैं ना जो कराची में लगे होते हैं विद रेपिटेशन ब्यूटिफुली, आधे फटे हुए आधे पीछे और उनकी चीज़ें दिख रही हैं, सही है. दैट इज़ द लेयरिंग आई वाज टॉकिंग अबाउट, राइट. तो अरीब क्रिएटेड दीज पोस्टर्स, सही है. और इसको हमने सबसे सस्ती क्वालिटी का प्रिंट कराया, सही है. और ये हमें सस्ता पड़ा था, बस उसके अलावा कुछ नहीं. तो हमने पोस्टर्स प्रिंट कराए, सही है. वी पेस्टेड देम लाइक द पेस्टर्स डू इन कराची. तो उसके बाद वी रिप देम आउट, सही है. सो वी आर ट्राइंग टू क्रिएट अ पॉप आर्ट टाइम स्पेसिफिक इंस्टॉलेशन, सही है. पता नहीं इसको किस तरीके से बोलेंगे, व्हाट आर द राइट वर्ड्स, बट इट वाज ब्रोकन डाउन आफ्टर 21 days. और उसके बाद बीच में कॉल, बहुत 2-3 लोगों की कॉल है जो मुझे पता चला टू द गैलरी कि यार हमें ये पीस ख़रीदना है, सही है. We were like, no, it's going to be destroyed. Like our investment is going to be destroyed. But it was creating value for myself. सही है. Value कैसे कि if I invest 60,000 right now, सही है, and I don't put it up for sale, the people who aren't even that interested will be interested when they say when they look at the prices and it's written not for sale. सही है. तो अगर आप लोगों को समझ आए कि पैसा is important, but holding back sometimes pays off later on, सही है. तो I think that was a really cool collaboration that I did with Areeb. उसके बाद I think ये वही बात कि how क्या बोलते हैं, inspired by how you get like inspired by your city, by where you are. तो मेरी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन इज़ बीइंग अ पार्ट ऑफ कराची. कराची में होते हुए जो सबसे मज़े के मेरे इंटरेक्शंस हुए हैं वो ये हैं, जब मैं चाय के ढाबे पे बैठा हूँ, सही है, मैं रात को रैंडम इंटरेक्शंस कर रहा हूँ, पुलिस वालों ने रोक लिया मुझे, कभी कुछ कर लिया, सही है, चालान कट गया मेरा, कभी रैंडम ऐसी चीज़ें कराची में होती हैं, सही है. So that all is just content for your work and that is so beautiful क्योंकि आपको कहीं और ये चीज़ें देखने को नहीं मिलती, सही है. अगर कराची बिल्कुल साफ़ सुथरा, सही है, बेहतरीन हो जाए, सिर्फ पढ़े लिखे लोगों, सही है, सब इंग्लिश में बात करेंगे, आप मज़ा कहाँ आएगा, सही है. तो ट्राई टू बी ऑनेस्ट. मतलब मैं इधर बकचोदी बोल रहा हूँ इधर स्टेज पे, सही है, आधे लोग बोल रहे हैं ओ व्हाट द फक. भाई यही दैट इज़ कराची, सही है. दैट इज़ बीइंग पार्ट ऑफ द सिटी, ओनिंग दैट एंड नॉट बीइंग अशेम्ड ऑफ दैट इज़ ब्यूटिफुल, सही है. तो लाइक दिस पीस वाज फॉर फांटा रंगफुल वाज अ कैंपेन जिसके अंदर हसन रहीम मेड अ सॉन्ग फॉर देम. तो उसके अंदर दे हैड मी डू अ ग्राफिटी पीस इन क्लिफ्टन. तो आई डिड दिस ग्राफिटी पीस एंड जो रंगफुल वाज द ब्रीफ, सही है. मतलब ये एजेंसी वाले ब्रीफ भी बहुत ही बकवास देते हैं. तो जब उन्हें ये मुझे ब्रीफ दी, सही है, तो व्हाट रंगफुल मेंट टू मी वाज कि यार ये जो हमारे लोग हैं डिफरेंट कल्चर से, सही है, और उनका फैशन सेंस ही अलग है. मतलब अगर हम लोग पहनेंगे तो बहुत ही सोबर कलर्स हम लोग पहनते हैं, सही है. वी डोंट हैव द कॉन्फिडेंस टू पुल ऑफ दोज कलर्स, सही है. उन लोगों के पास वो चाहे वट एवर यू मे कॉल देम, वट एवर यू मे से कि अच्छा वो लोग अच्छे नहीं लग रहे, सही है, बट दे हैव द कॉन्फिडेंस दैट वी डोंट हैव. तो इसलिए दैट वाज समथिंग दैट वाज रियली rungful and like really colorful and really like beautiful to me. उसके बाद ये biker boys, सही है, ये boy एक CD70 पे चप्पल पहन के हरे रंग का शलवार कमीज़ पहना हुआ है, सही है, वो व्हीली मार रहा है, सही है. तो that is something that I only had the privilege of looking of because of being in Karachi. तो अपने आसपास आप देखो, सुनो, सही है, और don't try to judge everything, सही है. हर किस्म के लोग हैं, यूर डिफरेंट, सही है, वो आपको जज करें, आप उनको करें, सही है. व्हाट आई ट्राई टू प्रैक्टिस माई सेल्फ इज़ के सी द ब्यूटी इन ऑल ऑफ दैट, सही है, और उससे मैं काम कैसे बना सकता हूँ. मतलब व्हाट कैन आई गेट इंस्पायर्ड बाय, सही है. तो आई थिंक दैट इज़. अच्छा, डू एनी ऑफ यू हैव क्वेश्चन्स? ये आर्ट करते हुए अगर गलती हो गई फोटोशॉप में तो रीडू कर लेते हैं, इसमें कैसे कवर करते हो? या दैट तो ये हमारे भाई ने सवाल पूछा है कि व्हाट इफ़ आई मेक अ मिस्टेक, अगर मुझसे कोई गलती हो गई while doing graffiti, so what is the way to go back, सही है.
तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि दीज आर बेसिकली लेयर्स, सही है. आप डिजिटली भी काम कर रहे हो, यू हैव लेयर्स, सही है. सो व्हाट आई ट्राई टू डू, आई मेक दिस स्केच फर्स्ट, उसके बाद आई फिल इट इन, देन आई हैव माई आउटलाइंस, देन आई हैव माई शैडो, सही है. तो ऑल ऑफ दैट इज़ लेयर्स. तो अगर कुछ हो गया तो आई जस्ट पेंट ओवर दैट विद अनदर कलर, सही है. लेकिन मसला जब आता है व्हेन यू डोंट हैव अ बैकग्राउंड, सही है, आई एम जस्ट यूजिंग अ शेड ऑफ वॉल फ्रॉम कराची, सही है. तो जब गलती होती है ना तो आप डिज़ाइन ही पूरा ऑल्टर कर दो, सही है. व्हेन यू आर गुड एट व्हाट यू डू ना, तो आप जब गलती भी करो ना तो नहीं पता चलता किसी को, सही है. बिकॉज यू लाइक हैव सो मच एक्सपीरियंस इन योर वर्क, सही है, कि सिर्फ वो आप ही पकड़ सकते हो और कोई और नहीं पकड़ सकता. तो ये होता है, ये बहुत होता है कि बहुत दफ़ा होता है कि कुछ गलती हो गई, कुछ दफ़ा काम बहुत बढ़ भी जाता है, सही है. लेकिन इट्स ऑलवेज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस के डूइंग ग्राफिटी यूजिंग अ स्प्रे कैन इज़ अ रियली फन मीडियम, बट इट इज़ ऑल्सो रियली डिफ़िकल्ट. तो सिर्फ स्प्रे कैन यूज़ करके एक आर्ट वर्क बनाना सही, यू गेट ऑल ऑफ दिस कूल टेक्निक्स, लेकिन इट्स ऑलवेज रिस्की कि आपने एक दफ़ा वो एक स्ट्रेट लाइन खींच ली, सही है. अगर इफ़ यू मेस्ड इट अप, सही है, तो अब आपका 15-20 मिनट ज़ाया, यू हैव टू गो जुगाड़ बैक. करना पड़ता है, फिर जुगाड़ करना पड़ता है. फिर फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव डिफरेंट कलर, सही है, तो फिर आई पेंट इट ऑल वाइट, देन आई पेंट द कलर ऑन इट, सही है. तो इट्स लाइक अ लॉट ऑफ स्टेप्स दैट यू हैव टू डू, सही है. पर आई थिंक इट्स द मोस्ट फन एंड द मोस्ट एम्पावरिंग मीडियम दैट आई हैव एवर यूज्ड. So being like in an art school, I've tried a lot of different mediums, digital mediums also, and like painting, oil paints, acrylics, and all of that. So yeah, so I think I'm the only one who's just like probably does physical art stuff and all of that. इधर सब speakers में से तो लेकिन the best thing I found talking about like digital mediums is Procreate. So I think probably a lot of you know about Procreate, सही है. That is the tool I use before any project, सही है. So when I get a client who is interested in a project, सही है, who gives me 50% advance payment पहले, सही है, उसके बगैर no work ever, सही है. ज़्यादा से ज़्यादा send a mood board, सही है, but don't do any work for them before the advance payment. Okay, so मुझे advance payment मिल गई, सही है. उसके बाद I basically use Procreate to create my designs, सही है. तो इसके अंदर I have all of these different brushes. Just let me choose a brush. Oh. Another question? Yeah, go ahead. Assalamualaikum. Basically, I am a hip hop artist. So graffiti जो है वो hip hop से relate करती है. Yeah, of course. और पाकिस्तान में इसकी acceptance बहुत कम है. तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप wall art कर रहे हो, बाहर से आके लोगों ने रोका हो कि नहीं ये नहीं करें, तो how do you overcome that things? हाँ, मतलब आप जो पूछ रहे हैं सवाल के ग्राफिटी इज़ अ पार्ट ऑफ द हिप हॉप कल्चर, दैट इज़ राइट. और आप बोल रहे हैं कि रेजिस्टेंस फ्रॉम पीपल, रेजिस्टेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट, सही है. इफ़ यू बी इवन टॉकिंग अबाउट द हिप हॉप कल्चर, सही है, अगर आप देख रहे हो तलहा यूनस, यंगस्टर, सही, हु आर अर्निंग मिलियंस एंड बिलियंस, सही है, अभी सही है. आप अगर देखो दिस स्टार्टेड 12-13 ईयर्स अगो, 15 ईयर्स अगो, सही है, जब कोई नहीं सुनता था उनको, सही है. वो जब से काम करते, नो वन लिसन टू देम, उनको गालियाँ ही सुनाते थे सब, सही है. उसका यू हैव टू गो थ्रू दैट, सही है. मेरे साथ भी होता है जब मैं रैंडम कोई जगह पे ग्राफिटी करता हूँ, सही, पुलिस वाले, आई हैव इवन गॉटन अरेस्टेड वंस, सही है, मुझे बहुत दफ़ा पुलिस को पैसे भी देने पड़े हैं, सही है. एंड ऑल ऑफ दैट इज़ पार्ट ऑफ रेजिस्टेंस, सही, यूजिंग योर आर्ट टू ब्रेक द रूल्स, सही है. whenever you try to break rules, whenever you try to do something different, you will get resistance, सही है. But that is all fun. That gives you adrenaline, सही है, and that pushes you further कि आप कुछ मज़े का करो, छुप के करो. जब हम छोटे होते थे तो जो चीज़ छुप के करने में मज़ा आती है, सही, वो अब वो बड़े होके नहीं मज़ा आता, सही. क्या बोलते, अब कोई रोकने वाला ही नहीं है. तो जब तक आप छुप के कर रहे हो ना, दैट इज़ ऑल्सो ट्राई टू इन्जॉय दैट पार्ट, सही है. कि जब आप गालियाँ भी खा रहे हो लोगों से, सही है. जो मेरा पहला ग्राफिटी पीस था कराची में, तो वो मैं निकला हूँ, मैं फ़िल्म कर रहा हूँ, मैंने पहली दफ़ा कैंस ख़रीदे, सही है. मैं एक दिन काम कर लिया उसके ऊपर, दूसरे दिन मैं गया काम करने, तो उसका मसला ये आया कि लोग जमा हो गए, सही है. एक बंदे ने
लिटरली आके पूरे मेरी ग्राफिटी पीस पे ना लकड़ी जला के लगा दी, सही है, ब्लैक आउट कर लिया उसको, सही है, पूरा पीस मेरा ख़राब कर दिया, सही है. So what I did, I just took a picture in front of that, posted it on my Instagram, सही है, and a lot of people were like, oh shit, ख़राब कर दिया, ये वो, सही है, lot of sympathy, सही है, but I didn't want that. I was like over to the next, सही है. Giving my work into the public means कि यार अब उनकी प्रॉपर्टी वो आके ख़राब करें. मैं अगर एक दीवार अपनी मर्जी से पेंट कर सकता हूँ तो कोई दूसरा आके उसके ऊपर काम क्यों नहीं कर सकता, सही है. सो दैट ऑल्सो brings you to a point कि एक temporality with your work and not having any ego at all, सही है. आप कौन हो कि आप जाके बोलोगे यार ये मेरा काम है, कैसे किसी ने ख़राब कर दिया, सही है. That also humbles you, क्या बोलोगे यार अब उसकी बारी है, उसने कुछ कर लिया उसके ऊपर. So that is also completely okay. So for tomorrow, I think around 3 to 5 in the art jam room, I'm doing like a graffiti, lettering, typography workshop where we just sit down, have some fun, design some graffiti, and basically paper pencils. आपके paper pencils हम लोग देंगे, आप iPad लाना है, laptop लाना है, say whatever you want to bring, just bring that, and we'll just design some cool graffitis. सही है, we'll learn the basics and have some fun. So I'll have my iPad tomorrow, I'll have a projector, सही है, और हम लोग एक screen पे ना I'll create live graffitis for you guys, सही है, and teach you how I do it and what's my process. So if you have any other questions, let's do that. Varna, I am off for now.